जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 322nd episode of live analysis where we are going to discuss what happened today in markets, what is the most likely trading plan for tomorrow, and what is going on in global markets. So we will discuss a lot of things. Welcome everybody. So I see all the regular faces. Most of you are our group members, our students. So I hope everybody was on the right side of the trade today. Why? Because everything was explained in yesterday's session, isn't it? So let me just see how many of you are satisfied with the analysis that was given yesterday, or how many of you feel confident after watching our YouTube session. Just let me know, guys, so that even I will come to know whether the analysis is helping or we should do some modification. So I see a couple of people saying satisfied. They are showing me thumbs up. So I think, okay, few are super satisfied. That's great. संतुष्ट हैं, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Great. All right. So let us start today's session. So what is happening around this world? What is happening around this world? A lot of things are going around, be it politics, be it geopolitics, be it Corona the killer, and be it markets the roller coaster. So a lot of things are going around. Uh, so let me just open Nifty's chart and let me have a look what happened today. And हमने जो कल एनालिसिस की थी उसके vis-a-vis किस तरीके से मार्केट आज फेयर किया. सो वेरी क्लियरली, if you guys remember very clearly, I had said that this is the line in the sand, right? Above this, it is completely bulls territory, and below this, game over. ठीक है, इसके नीचे पूरी तरीके से game over. Why? Because number one, we had a very good global rally. ठीक है, we had a very good global rally on last weekend, and this being a triple and a four time top, always market takes out such critical resistance level with a gap. So you had an undercurrent, a bullish undercurrent was there, and you could have very easily gapped up above this and trapped the bears, and by mere short covering you could have traveled like this. So our trade plan was very clear that, guys, this is the weekly mob level, this is the daily mob level, and if markets are opening above this, we will be bullish till markets are trading above this. But if there is a gap down opening, that means India has not participated in the global rally. That was just a 1st April rally, which in local terms is called as a April Fool's rally, right? So 1st of April, Thursday, and everything rallied. Everybody was bullish. Everybody started to give targets of 16,000. Few also started giving targets of 19,000. And this is what was concerning me yesterday. I expressed my concern with you guys कि एक दिन के बाउंस से इतना ज्यादा बुलिशनेस होना, एंड नो बडी इज बेरिश इन दिस मार्केट. मैं जिसको देख रहा हूँ सब लोग तेजी करा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी कंसर्न. सो टू सॉर्ट आउट माई माइंड एज इन की अगर सब लोग बुलिश हैं तो बेरिश कहाँ से हमको पता चलेगा. सो व्हाट आई डिड इज आई चेक्ड what is happening on the Sensex chart, and I shared this analysis yesterday also. So when I looked at Sensex chart, that chart offered very clear analysis. Okay, so Sensex is always a very useful index when it comes to solving your any doubt if you have in your mind. So when I looked at Sensex, it was a very precise channel, a very precise downtrending channel. We have broken the September trend line, and even if there would have been a rally, it would have taken resistance very strongly at this channel resistance over here. So one thing was very sure, even if there is a gap up opening, this rally
has lot of resistance and it will not be an easy affair. It will not be easy for market to travel and this should be the path of price. तो इस तरीके से ये रैली अगर ऊपर भी जाता है तो इसको वापस से क्रैश करना है, वापस से इसको नीचे आना है. आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड कि 9 अप्रैल के आसपास निफ्टी जो है 13,900 के आसपास होगा या तो यहाँ होगा. और ये दोनों चीज डिसाइड कौन करेगा कि हम कहाँ पे ओपन करते हैं. इफ देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग देन वी आर क्लियरली हेडिंग डाउन. इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग वी आर गोइंग अप. बट इवन इफ वी आर गोइंग अप मार्केट्स विल फेस रेजिस्टेंस. ये मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था और इसके दो रीजन है. एक तो ये हो गया सेंसेक्स का चार्ट. उसके बाद अगर हम ये देखें S&P 500 पे क्या हो रहा है. सो S&P 500 हैज ब्रोकन आउट, डाउ जोन्स हैज ब्रोकन आउट एंड दे आर बुलिश. तो मैंने दोस्तों एक और लॉजिक ये लगाया था कि ये जो मार्केट है ये पिछले 3 महीने से जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं 21 जनवरी से, दिस मार्केट हैज नॉट रैलीड मच एंड इट वाज सिंपली कंसोलिडेटिंग इन अ ट्रायंगल पैटर्न लाइक दिस. ओके, सो from 21st of Jan till you can say 31st of March nothing much happened. So basically 2021 में US market में कुछ खास हुआ नहीं है and most of the rallies has happened in the emerging market index which is here, right? So if US market has broken out तो ये आउट परफॉर्म करेगा whereas profit booking should happen in the emerging markets. दूसरा क्या लॉजिक था? दूसरा लॉजिक ये था कि यूएस डॉलर अभी भी काफी ठीक है एंड यूएस डॉलर में एक डिप के बाद वापस से एक रैली आएगी. सो यूएस डॉलर जो है अपना सेलिंग प्रेशर मेंटेन करेगा. सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड विद सेंसेक्स एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बैंक निफ्टी. इफ यू रिमेंबर बैंक निफ्टी पे मैंने बहुत ही क्लियर कट ये कहा था कि ये काफी बेरिश है एंड जब तक हम 34,500 को नहीं कट करते हैं, जब तक हम इस डाउन ट्रेंडिंग पिचफॉर्क में रहेंगे, द ओनली टारगेट आई सी फॉर बैंक निफ्टी इज समथिंग अराउंड 30,000, 31,000, 30,000. दिस इज वेयर Bank Nifty has a date. So Bank Nifty should come in April around these levels. So that was the culprit. In fact, और HDFC बैंक का चार्ट जब हमने कल देखा था तो उसमें एक और इशू था. इशू ये था कि जो उसका सपोर्ट था, अगर वो सपोर्ट टूटता तो HDFC बैंक बहुत ज्यादा फॉल करता. ये बात भी हमने कल डिस्कस किया था कि अगर वो सपोर्ट टूटा तो बहुत ज्यादा फॉल होगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कल अगर आपको याद होगा तो मैंने HDFC बैंक के बारे में काफी कंसर्न भी एक्सप्रेस किया था कि इस बैंक में कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग फिशी व्हिच इज गोइंग अराउंड. आरबीआई ने काफी वार्निंग भी दी है एंड इफ HDFC बैंक स्टार्ट्स टू collapse, if HDFC bank starts to go down तो FII selling होगी because FIIs are highly positioned in the HDFC bank stocks, right? Now if you remove everything else, if you just follow simple technicals, if you follow my type of analysis, you can clearly see Bank Nifty has broken down, right? This is the downtrending pitchfork that we are following and very high chance, I mean this is like a child's play कि यहाँ तक तो Bank Nifty को आना ही है which is 31,400, around 31,000, right? So जब तक हम इस डबल बॉटम ब्रेकडाउन को ब्रेकआउट नहीं करते, जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, we should head down. So all this analysis has worked and I hope everybody has profited or everybody is at least on the right side of the trend. Making money is not that important, but saving money is more important in stock market. Okay, so ये था एक update about what happened in today's session. अगर निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स भी अगर आप देखते हैं तो even after the gap down opening you had a fair chance to short this market. If you see, this is where the VWAP was positioned on the Nifty future. So gap down के बाद मैंने इस वीक के ट्रेनिंग में काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब मॉब लेवल के साथ ट्रेड कैसे करना है. So the training which we are taking right now since last 1 month, so we are specifically trying to teach how to trade with mob level, as in how to find these levels, क्या लॉजिक होता है, कैसे हम खोज सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करके हम बेटर हो सकते हैं, and then how to find the targets and how to use VWAP, all types of VWAP, how to use VWAPs to help ourselves to take the trade in any given situation. Okay, so everybody should attend that training because it can be very beneficial for a regular trader, even for a seasoned trader. So that same setup, you have a gap down, big candle, couple of inside bars, L shape, और L shape जब होता है तो बड़ा fall हो जाता है, correct? So we had this and this is where you could have shorted
Few students in my group, they initiated the trade here itself around 14,840, and rapidly they saw a decline of 200 points within couple of candles, and 14,640 came in a jiffy. So 200 points very easily you could have made over there. And then nothing happened. You had a pullback sideways, nothing much happened because this was a very big decline, almost 400 points decline. So 400 points काफी होता है एक दिन में निफ्टी के लिए. And once again the 14,500 scenario came. 14,500 is a strong level, right? Yeah, so 14,500 was a strong level and that provided some support. Nifty के pitchfork की बात करें तो you see, let me tell you one thing guys. See, this market is rolling down. इसमें अगर किसी को शक है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए. Why this market is rolling down? कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि how markets work in terms of price and in terms of momentum. Most of the people, they either look momentum or they either look price. Very few have the expertise to judge both. So I tried to explain you guys by talking in terms of the pitchfork that earlier this coronavirus rally started and it was in a very nice 45-degree angle, which is the natural course of price. But then after November, when US presidential election happened, then we started to rally in a 60-degree slope. Now this trajectory is never sustainable for a big market like Nifty. It can be sustainable for a stock, for something which is on a standalone basis, but never for a equity index of a large economy. Okay, so this has to come down, this has to cool down basically and align back in this pitchfork. Now this cooling effect, this movement can be in terms of price, can be in terms of time. So in terms of price का क्या मतलब है? You can have a large drop, एक कैंडल ऐसे बन जाए और आपका एक ही हफ्ते में काम हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था. ठीक है, जैसे 21 दिसंबर का जो एक फॉल था इंट्राडे चार्ट्स पे, राइट? सो या तो प्राइस वाइज हो सकता है. अगर प्राइस वाइज नहीं है तो क्या होगा कि ये फिर स्लोली एक चैनलाइज्ड तरीके से करेक्शन करेगा. ठीक है, इन अ लॉट ऑफ zigzag फैशन, सेवरल रोटेशंस होंगे, 5-7 रोटेशंस होंगे, एंड देन इवेंचुअली वी विल अलाइन इन दिस पिचफॉक. एंड आफ्टर दैट या तो फिर ये मार्केट एक और लार्ज बुल ड्राइव करेगा, बुल रन करेगा, या फिर ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड देन मार्केट्स आर ओवर. सो बेसिकली मार्केट जो कर रहा है इसमें कोई नई चीज नहीं है. ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले 2-3 महीने से. ये मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में न्यू हाइज बनने के सपने आप छोड़ दीजिए. नाउ व्हाट इज द करंट रिस्क इन मार्केट एज ऑफ नाउ? Many of you use indicators. Let me see how many of you actually know how to use indicators. So this is the simple MACD, जिसको प्यार से लोग MACD भी कहते हैं, right? Now whenever you have the context where earlier MACD used to correct and then you had a crossover, then rallies used to happen, then एक बार इसमें जो है hidden divergence आएगा, फिर एक और रैली होगी, फिर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस आएगा, और अगली बार आप लोगों ने इंडिकेटर्स वगैरह बहुत पढ़े होंगे, बट आई एम श्योर कि किसी ने सीक्वेंशियल एनालिसिस नहीं पढ़ी होगी. सो जब ये सेटअप होता है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो मोमेंट है, दिस इज द मोमेंट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन. दिस इज द एंटर द ड्रैगन मोमेंट. व्हाई? बिकॉज यहाँ से ईदर मार्केट्स बॉटम एंड स्टेज अ वेरी नाइस रैली और कोलैप्स. ठीक है, और कोलैप्स. यहाँ पे देखो कोविड के पहले क्या हुआ, सिमिलर सिचुएशन. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज वाचिंग, दैट द MACD बिहेवियर हैज चेंज्ड सिंस लास्ट 5-6 months, और प्राइस में तो चेंज हमको दिखाई ही दे रहा है. सो दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि एक ओवरसोल्ड मार्केट हाईली ओवरसोल्ड कब बनता है? जब इस टाइप की टेक्निकल रीडिंग्स आती हैं, जब इस टाइप की टेक्निकल बिहेवियर आती हैं, तभी वो ओवरसोल्ड होता है. नाउ इसको हम और किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं? लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग एल्स. इसको हम, अगर आप सिंपल ऐसे सोचें, अगर ये सारी ड्राइंग्स को अगर मैं रिमूव कर दूं, इफ यू लुक लाइक दिस, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये मार्केट एक ऐसे रिस्क पे है जहां पे हेड एंड शोल्डर एक बन रहा है. ओके, हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बन रहा है. द ओनली सेविंग ग्रेस इज दैट this market has a support like this
अगर सपोज ये ब्रेक हुआ, तो दिस मार्केट विल कोलैप्स। लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट। तेजी में सब लोग खिलवा देंगे आपको, तेजी में सब लोग जो है बाय करा के बिठा देंगे। और अगर ये सिनारियो हो गया, जिसके चांसेस तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मे बी मार्केट्स एक और ट्रिप लगा सकता है, बट अगेन एज आई सेड, ये मार्केट इस चैनल में ट्रेड करेगा। बेस्ट केस सिनारियो है कि वी ट्रेड इन दिस चैनल, and again maybe in next round we start to collapse, because in next round we would have made a bigger and a very nice head and shoulder pattern. Okay, so what are the concerns? The concern number one is of bank nifty, right? The concern is your sector rotation which is happening. Then global concern है, यूएस हो सकता है आउट परफॉर्मेंस करेगा। फोर्थ है आपका इमर्जिंग मार्केट इश्यूज है। फिफ्थ है आपका यूएस डॉलर है। And today, crude oil has again crashed. Crude oil has hit lower circuit, which I was not expecting. Now, this is something which is very, very important, because crude oil को मैं काफी अहमियत देता हूँ, and crude oil is one of my leading tool and indicator both. So all these things are suggesting that we are going to collapse. इसमें कोई भी डाउट नहीं है मुझे, we are going to collapse. Maybe if we break here itself right now, तो हम सीधे collapse कर जाएंगे। नहीं तो because अब वेडनेसडे को आरबीआई मीटिंग भी है, and बैंक निफ्टी has also is very oversold. Maybe just to save till Wednesday, till RBI meeting, this market maybe saved, manipulated. Here we have a technical support, so maybe यहाँ से एक और ट्रिप लगा सकते हैं 15,000 के आसपास, 15,100 के आसपास, but then that's the end of it. ये होना लाजमी है, नेचुरल सी बात है। all these sequences they are not lying. Okay, also USD-INR, if you look at USD-INR long term, we are at a very crucial position. So 72.5, 72 is a very strong base, and exactly 12 months से हम इसमें करेक्शन में थे USD-INR में. So let me just open and show you what is happening with USD-INR. So if USD-INR, if you look at this simple weekly chart, अगर आप देखेंगे USD-INR का, तो हमने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ से, and the long term charts of USD-INR, they are suggesting that we can witness a very spiky move like this. Okay, it may not be a currency crisis, we can hit definitely 78 in the long run, but the trend line support is very, very critical. You see, the trend line support is very, very critical. Last time हम 2019 में एक इसी तरीके से 12 महीने के साइकिल में हमने करेक्शन किया था. Right now again we are completing the channelized correction of 12-13 months, and again same situation यहाँ पे है. Also अगर मैं long term देखूं तो this looks a very rising wedge scenario, where I think this should be final top, and after that you can see a massive downfall in the USD-INR, because that time maybe Indian economy would have stabilized, the financials and all those things, macros would have stabilized a lot. So इन सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो मीडियम टर्म में पर्सपेक्टिव जो है वो काफी नाजुक है. उतना इजी मार्केट नहीं होगा, बट ट्रेडर्स मार्केट है, एंड यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस मार्केट. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ मैंने जो अभी बातें की हैं लास्ट 15 मिनट में, ये कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस है. अब कल के ट्रेड प्लान और कल का बाजार किस तरीके से होगा, एक बार उस पर नजर डालते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट्स अप, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट इज, अगेन we will repeat 15th March. Now why we will repeat 15th March? Look at this candle. Do you see this candle and this candle? There is a lot of similarity. There is a lot of similarity, right? So the spread is same. ये भी लगभग 400 पॉइंट था, ये थोड़ा बड़ा है. And what happened second half में, इस कैंडल में बाइंग आती है and it closes just at around 50%. यहाँ पे अगेन सेकेंड हाफ में बाइंग आती है, इट इज क्लोजिंग जस्ट एट 50%. नाउ इफ यू कंबाइन द रीसेंट कैंडल्स, यू कैन क्लियरली सी ये जो लेवल है आपका 14,635, 14,635, ये अब आपका मेक और ब्रेक लेवल है. यानी फिलहाल अगले दिन के लिए, कल के लिए ये एक क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि इसके नीचे देयर इज नथिंग. इसके नीचे आई थिंक
the only target I can see is 14,200. okay, 14,200. so ये बात समझिए कि 14,635 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, इसके नीचे अगर हम एक और क्लोज करते हैं, तो मार्केट कैन वेरी इजिली गो टुवर्ड्स दिस लेवल 14,200 एंड आवर टारगेट इज nothing less than 13,900. So this is where we are targeting. This has been our target. Okay. So एक आइडिया दे रहा हूं कि 15 मार्च की जो कैंडल थी वही चीज यहाँ पे रिपीट होगा. अब कल हो सकता है इस तरीके से इनसाइड बार बने, एक इनसाइड कैंडल बने. अगर मार्केट थोड़ा भी बुल के कंट्रोल में है, दे विल ट्राई टू मेक अ इनसाइड कैंडल. टुमारो इज वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, देन वी हैव वेडनेसडे. सो फाइनल नेल इन द कॉफिन विल कम ऑन वेडनेसडे. ओके, सो कल के लिए प्रिपेयर रहिए मेंटली कि एक छोटा रेंज हो सकता है, एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, बट 14,635 के नीचे मार्केट खतरे में आ जाएगा. ठीक है, अब ट्रेडिंग लेवल्स की बात करते हैं. ये तो चलो काफी बातें हो गई, अब बात करते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की. सो इंट्राडे चार्ट अगर हम देखें, निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट चार्ट अगर हम देखें, तो कल के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, कल देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ट्रेड करना. ठीक है, कल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. वाई? बिकॉज आज का रेंज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि कल बहुत सारे लेवल्स जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं. ओके, द ओनली level I feel can offer a decent mob level type behavior is I think this level. Okay, 14,700. because यहाँ पे एक तो horizontal resistance है, and earlier we had a trend line also which acted as a सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके, सो कल का मॉब लेवल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि 14,700 जो है ये आपका मॉब लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा. व्हाट इज मेक और ब्रेक लेवल? इट इज अ रेफरेंस लेवल व्हिच डिसाइड्स द ट्रेंड दैट हेल्प्स यू टू कीप on the right side of the market. So 14,700, this is what I will select as the mob level. Probably we can have a gap up. तो अगर हम यहीं कहीं गैप अप करते हैं and we start to again fall, कोई भी ट्रेड लेने के लिए वीवैप का यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए. अगर आप वीवैप को यूज करना नहीं जानते हैं तो प्लीज जाइए, सीखिए, खुद से सीखो, किसी से भी सीखो. वीवैप के बिना इस पोस्ट कोविड मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ट्राई टू लर्न all type of VWAP. We teach every kind of VWAP, the regular VWAP. There is our own proprietary VWAP and then anchored VWAP. So all these things you should know. Okay, so 14,700 that's the mob level. इसके ऊपर अगर ये बाजार चलता है तो एक बार इस क्लस्टर को यहाँ पे रीटेस्ट हम कर सकते हैं, which is around 14,770. That's it. इसके ऊपर तो इस बाजार से उम्मीद नहीं है मुझे. And on the downside, first target होगा हमारा 14,570 and second target is, it's all open. Second target क्या दूं, सब open है. 14,470 and then 14,250. ठीक है, so इस तरीके से 3 targets are there. एक रेफरेंस लेवल देता हूं, जैसे डॉक्टर्स एक टैबलेट देते हैं, फिर कहते हैं कि ये टैबलेट तभी लेना जब ज्यादा बुखार आए या ज्यादा सर दुखे, तो ये लेवल को आप ध्यान रखना. 14,635. okay, because this is where big guys are paying attention. अगर इसके नीचे ऑक्शन होता है, इसके नीचे मार्केट जो है एक्सेप्ट करता है, तो 14,470, 14,250 ये सब आ सकता है. ओके, नाउ याद रखिए आज का कैंडल काफी बड़ा था, तो कल जनरली इनसाइड बार हो सकता है. सो डू नॉट ट्राई टू ओवर ट्रेड. इट्स अ नेचुरल बिहेवियर कि आफ्टर अ लॉन्ग कैंडल यू कैन हैव इनसाइड बार. ठीक है, सो कल का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है. नाउ सिनेरियो नंबर 1, इफ देयर इज सडन गैप डाउन बिलो टुडेज लो, ये तो अभी चांसेस तो बहुत कम है, बट सपोज आई बिलीव कल ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव खुलेंगे. कल ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव खुलेंगे ऐसा मुझे लगता है. एंड अगर ऐसा कोई सिनेरियो हुआ, क्योंकि ये बहुत रेयर है, बिकॉज मार्केट 200 पॉइंट इसको नीचे खुलना पड़ेगा, सो आई डोंट थिंक सो ये होगा, बट सपोज, ओके, व्हाई सपोज, बिकॉज ऑन दी हायर टाइम फ्रेम वी आर मेकिंग दोस हेड एंड शोल्डर. तो ये कोलैप्स जो है ना, ये ऐसे ही होगा एकदम वन फाइन डे, अ बिग गैप डाउन इसी तरीके से. So suppose we have to be prepared for all the eventualities now. So अगर इसके नीचे हम गैप डाउन करते हैं तो मार्केट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाएगा. And 14,200, 3,900, all those 13,900, all those levels will come. So trading काफी difficult होगा. And always remember, VWAP के नीचे शॉर्ट रहेंगे, VWAP के ऊपर शॉर्ट कट कर देंगे.
ठीक है। सो उसको एज अ गाइडिंग लाइट आप यूज कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होगा तो लेवल टू लेवल काम करेंगे, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो 770 तक मार्केट जाएगा एंड फ्रॉम देयर स्टार्ट शॉर्टिंग दिस मार्केट। ओके, याद रखिए अब ये जो हाई है थर्सडे का, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे का जो हाई है, ये जब तक इंटैक्ट है हम मार्केट में बेरिश रहेंगे, ठीक है। और नीचे में आपका 14,200 ये लास्ट सपोर्ट है, इसके नीचे नए बेयर्स आ जाएंगे, इसके नीचे मार्केट जो है 13,900 13,700 का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ लेट मी गो एंड सी बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगेन वेरी सिंपल ड्रॉप। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैंने कल आपको दिए थे, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल लेवल एंड बैंक निफ्टी में ओपनिंग के बाद अगेन व्हेन यू हैव द कॉन्टेक्स्ट इन योर फेवर, वी वैप के नीचे सीधे अटैक कर दो सीधे, एंड इफ यू कुड हैव शॉर्टेड ओवर हियर 1000 पॉइंट्स आपका कहीं नहीं गया। नाउ बैंक निफ्टी का जो प्रोफाइल है ये काफी वीक प्रोफाइल है, इट्स अ बी शेप प्रोफाइल, जनरली गैप डाउन होता है, बट इस पोस्ट कोविड मार्केट में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब भी बी शेप प्रोफाइल होता है मार्केट थोड़ा उल्टा बिहेव करता है, मार्केट गैप अप करता है। ओके, प्री कोविड मार्केट्स में जब भी इस तरीके का प्रोफाइल है मार्केट हमेशा गैप डाउन करेगा, ओके, या फ्लैट खुल के तुरंत गिरने लगेगा। बट पोस्ट कोविड मार्केट में ये बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इफ यू वांट प्रूफ देन सी दिस वाज अगेन, ठीक है, अगले दिन गैप अप होता है, गैप फिल और रैली। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम बिहेवियर है, राइट। सो दिस इज हैपनिंग, मार्केट्स के टेक्सचर वगैरह चेंज हो जाते हैं यू नो विद टाइम। सो दिस इज हैपनिंग। सो इस नॉलेज को हम यूज करेंगे और कल सपोज अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है तो हम आज के बॉटम तक बेरिश रहेंगे, बट बी केयरफुल, आज का बॉटम फिल होने के बाद हो सकता है ये वापस से एक बाउंस बैक करे, एक रिट्रेसमेंट रैली करे टुवर्ड्स 33,000। ओके, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो लेवल टू लेवल काम करेंगे। सो क्या होगा बैंक निफ्टी में लेवल्स, लेट मी शेयर द लेवल्स विद यू। ओवरऑल हम बेरिश हैं, बट नीचे में नहीं शॉर्ट करना है, नीचे में शॉर्ट करके फंसना नहीं है, आराम से काम करो, डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। सो आई थिंक मॉब लेवल अगर देना हो बैंक निफ्टी स्पॉट में तो मैं इसको कंसिडर करूंगा। ओके, सो द मेक और ब्रेक लेवल शुड बी 33,000, 33,100 कर देते हैं, समवेयर ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ डबल बॉटम ब्रेकडाउन रीटेस्ट पॉसिबिलिटी, राइट, एंड प्लस देयर यूज्ड टू बी अ गैप, देयर यूज्ड टू बी अ गैप, इस पे किसी का ध्यान नहीं गया, तो इसका भी प्रेशर यहाँ पे आएगा। हालांकि ये गैप फिल हो चुका है बट ऑक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इसका प्रेशर यहाँ पे आएगा एंड दैट विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑक्शन। सो 33,100 इसके नीचे मैं बेरिश हूँ। पहला टारगेट हम करेंगे 32,500 एंड सेकेंड टारगेट होगा आज का बॉटम विच इज 32,300। ये अगर ब्रेक होता है देन देयर इज नो सपोर्ट, देयर इज नो सपोर्ट। जितना चाहे आप उतना सोच सकते हो, 31,700 भी आ जाएगा सेम डे में, देयर इज नो सपोर्ट एट ऑल। ओके, अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में रिकवरी होगी। जैसा मैंने बताया कि बी शेप प्रोफाइल आजकल जो है गैप अप या रैलीज क्रिएट करते हैं। सो इन दैट केस यू कैन वेरी इजीली सी दिस इज द लेवल 33,500, 33,500 and probably it can also retrace 33,700, ठीक है। अगर जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है 33,100 के ऊपर ये मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, वापस से इसको शॉर्ट करेंगे। याद रखिए बैंक निफ्टी में पोजिशनली हम शॉर्ट हैं, टारगेट्स अभी भी नीचे पेंडिंग है, 30,000 और 31,000 के टारगेट्स हैं, राइट। बट नीचे में ट्रैप मत होना, फिर बाद में ब्लेम मत करना मुझे कि नीचे में शॉर्ट करवा दिया, ठीक है। ऊपर जितना ऊपर मिले उतना अच्छा है। और अब फॉर एनी शॉर्टर फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस इज दिस, फुल एंड फाइनल। व्हाई? 1 अप्रैल का फुल अगर कट गया तो फिर स्मार्ट रैली होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का वीडियो मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ बिकॉज काफी हेक्टिक डे था एंड आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही होगी। सो गाइज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट अपडेट ये है कि दिस वीकेंड वी हैड द ट्रेनिंग। Again it was a very hectic training and all the students they are with us in the telegram group for 3 months.
So every day we will discuss every day their doubts etc. जो भी है, बड़ा अच्छा एक ग्रुप होता है हमारा, and we try to discuss, we try to sort out their doubts so that एक helping hand मिले post training, and gradually slowly everybody can learn. So the next batch, the next training is on 24th of April. So 24th and 25th, the month end Saturday Sunday, this is the weekend I can see in my calendar. ये है next training. Now after this training, I think in entire May I will not be there. Okay, so I think May month में कोई भी training नहीं होगी, and 17th to 28th May I will not be there at all. Fine, so इस time पे मैं दूसरे planet पे चला जाता हूँ, so I will not be there, and live sessions ये सब शायद नहीं होंगे बिल्कुल भी. So this is the probably the last training before I go on a vacation in May. Let me also tell you, this year May will be very dramatic. So I cannot cancel this vacation. I will have to go, but I will try my best कि जब जब मार्केट में कुछ खतरा लगेगा तब तब स्टैलियन ट्रेडिंग आपको अपडेट कर देंगे. ठीक है. सो एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन जॉइन एज अ स्टूडेंट, यू कैन रजिस्टर. काफी इंटेंस ट्रेनिंग है, एंड मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज लाइव ऑन दिस यूट्यूब. सो जिसको भी टेस्टिमनी चाहिए, जिसको भी पूछना है, आप सीधे इस लाइव में ही पूछ सकते हो. ठीक है. So charges and everything is written, and you are welcome to join. Please join as soon as possible. Do not keep it for last moment. Okay. So that's the update. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Let us see what is happening in MCX. तो MCX में काफी सॉलिड चीजें हुई हैं. सबसे पहले मैं आता हूं कि हार कहाँ पे हुई है. हार यानी कौन सी एनालिसिस फेल हुई है. ठीक है. वरना सब लोग कहेंगे कि अपना फेलियर तो दिखाता नहीं है. तो चलो अब मैं आपको अपना फेलियर दिखाता हूँ. सो व्हाट हैपेंड इन क्रूड ऑयल. सी इवन आई एम सरप्राइज्ड. व्हाई? बिकॉज बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन था थर्सडे को. राइट, वी सॉ दिस ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन. We saw breakout from this local channel post a double bottom structure, post OPEC event, and closing was also very nice. हाँ ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस पे थे, बट आई थिंक एक चेंज इन बिहेवियर, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर था. सो बेस्ड ऑन दिस, कल मैंने ये कहा था कि दोस्तों हम बाय ऑन डिप अप्रोच करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू बाय नियर 4450 और 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम बुलिश हैं 4650 एंड ऑल दोज लेवल्स के लिए. हम काफी बुलिश हैं क्रूड ऑयल में, यानी 200 से 250 पॉइंट्स हम टारगेट कर रहे हैं. बट आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि क्रूड ऑयल ने पूरा हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया. सो 50-60 पॉइंट्स का ये जो ट्रेड था ये फ्लॉप हो गया, एंड फ्लॉप होने के बाद क्रूड ऑयल जो है लोअर सर्किट हिट कर चुका. यहाँ पे गैप था, एंड दिस गैप ऑफ 25th March is now filled. Okay, so this is something which is little surprising to me. Why? Because crude oil इतना weird behave नहीं करता है. So इसका एक दूसरा भी मतलब है. दूसरा मतलब ये है कि क्रूड ऑयल अगर बेरिश हो रहा है तो इसका मतलब है कि इक्विटीज जो है आपकी, ये भी धीरे धीरे नमी पकड़ने वाली है. ठीक है. सो आई रीड दीज थिंग्स एट वेरियस लेवल्स. आई जस्ट डोंट रीड ऑन द फेस वैल्यू. इसका सेकेंड ऑर्डर रीडिंग जो है ये निकालना है. ओके. सो क्रूड ऑयल में अब मैं बेरिश होना चाहता हूँ, बट आई डोंट लाइक टू रश, especially after a failure. So obvious levels resistance जो है, आप देख सकते हो अब 4375, 4400, these are the resistances. Eventually it has to collapse, there is no denying, but थोड़ा सा मैं शांति के साथ इसको काम करना चाहता हूँ. ठीक है. सो क्रूड ऑयल पे अब हम बेरिश हैं, बट फ्रेश ट्रेड मुझे अभी नहीं लेना है. मैं इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ. लेट all global markets open tomorrow, because आज most of the markets are closed, so it can be a one off fall also, but still trend तो up down है, and it is very bearish. 4400 will act as a strong resistance. ठीक है. तो 50-60 पॉइंट्स का क्रूड ऑयल पे फेलियर हुआ है, बट where is the big shot? Where is the big shot? नेचुरल गैस. ठीक है. नेचुरल गैस में आप देखिए आग लगा दी है हमने. तो नेचुरल गैस में हम शॉर्ट थे, और नेचुरल गैस ने
कपल ऑफ टाइम्स हमारे शॉर्ट को बीट करने की कोशिश की, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, बट टुडे नेचुरल गैस हैज बीन tamed and natural gas is trading 10 points in profit, 183 पे है, and fantastic natural gas seems to be breaking very very confidently. ठीक है, सो इस पे हम सेल ऑन राइज रहेंगे. अब निश्चिंत है हम 197, अब हमारा फुल एंड फ्लेश लास्ट स्टॉप लॉस है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉल टू कीप कंटिन्यू. ये फॉल समर्स आ चुके हैं, अब नेचुरल गैस की डिमांड वगैरह जो है नहीं होगी, एंड बहुत ही अच्छा ये ट्रेड चलेगा. हर राइस पे इसको जो है हम तोड़ेंगे, हर राइस पे इसको शॉर्ट करेंगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 160 148 वगैरह आए, तब जाके कुछ मजा आए. ठीक है, सो ये पोजिशनल व्यू है. गोल्ड सिल्वर बुलियंस में हम बुलिश है, पर फ्रेश बाइंग थोड़ा सा करेक्शन के बाद कीजिए, क्योंकि लास्ट वीक काफी रैलीज इसमें हो चुकी हैं. द बिगेस्ट रैली दैट वी सॉ वाज इन कॉपर. अगर आपको याद हो तो मैंने कल कॉपर में कहा था कि आई एम बुलिश ऑन कॉपर एंड आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 700, एंड लुक व्हाट हैपेंड इन कॉपर टुडे, फ्रॉम 668 694 and still running. Okay, now why did copper turn on this candle? I have explained the secret to trade copper in our training, because the new training that we are conducting, it is more focused on how to trade index, forex and mcx. पहले मैं mcx नहीं लेता था, but now we have included the mcx and forex, so these two are new inclusions in the training, so that everybody can learn and everybody can find their own niche. You do not need to depend on Nifty and Bank Nifty. So crude oil में काफी अच्छा ये एक सेटअप रहा है, and a very very wholesome move in crude oil. निकल मैंने कल ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया था कि क्यों 1240 का लेवल आना चाहिए मिनिमम. सो नो सरप्राइज, निकल में आज बहुत ही सॉलिड मूव आया है. यू कैन सी फ्रॉम 1200 to 1240. सेम विद जिंक इज आल्सो बुलिश. सो आई थिंक कमोडिटीज में इट इज वेरी गुड. ठीक है, एंड क्रूड ऑयल वापस से हम देखेंगे, इसमें एक बड़ा ट्रेड वापस से कैप्चर करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द MCX. So let us wind up. I think we have reached 37 minutes, 38 minutes into the session. If there are any doubts, you can ask me. On the currency front, आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, because आज global markets थोड़े close थे. But the range which I have discussed yesterday, those levels will work. And tomorrow probably I will be active in the currency segment. So British pound पे नजर रखेंगे. थोड़ा बुलिश है ब्रिटिश पाउंड, तो इसमें जल्दबाजी में शॉर्ट नहीं करना है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 102.5 तक मैं वेट करूंगा, बिकॉज दैट इज वेयर इट इज हेडिंग. एंड क्योंकि यूएस डॉलर में पुल बैक है, तो यूरो और जेबीपी जो है ये थोड़ा बुलिश होंगे. सो लेट देम गो अप एंड देन वी विल स्टार्ट टू शॉर्ट. नाउ यूरो और ब्रिटिश पाउंड में यूरो ज्यादा वीक है, सो यूरो को मैं इमीडिएटली शॉर्ट कर सकता हूं, बट ब्रिटिश पाउंड के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा. ठीक है, बट ओवरऑल सेल ऑन राइज करेंगे. थोड़ा एक अच्छा पुल बैक आ जाए तो उसके बाद फिर हम वापस से तोड़ना शुरू करेंगे. ठीक है, MCX गोल्ड देखो, MCX गोल्ड रिवर्सल हो चुका है, राइट. MCX गोल्ड 44,000 का लेवल जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड था. डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है, सो बाय ऑन डिप्स करेंगे. 44,800 के आसपास गिरावट आए तो 44,700 44,800 ये सब अच्छे लेवल्स हैं. Okay, so gold is looking very nice, and after long time we are witnessing a positive reversal in gold. पहले भी ये attempt करता था, but it used to be sold off, but now post this double bottom, post the Jan to March quarter continuous decline after double bottom, now it is looking good. Okay, so you can see this is the band. इस band में हमको gold को buy करना है. So this band is till 44,800. So यहाँ पे बाय करेंगे, डबल बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड देन टारगेट्स आर 47,000 49,000, all these are targets. So positional we are bullish and bigger targets are there. सिल्वर भी we are bullish, but सिल्वर में थोड़ा गिरावट है, उसके बाद ही बाय करेंगे. बाकी जो डे टू डे ट्रेडिंग है, all those levels I will share with the students in the group. All right, so let us see some stocks. Why? Because
There are stocks which are tanking, so I've shorted Reliance because Reliance has finally broken the 2000 mark. तो छोटा सा शॉर्ट ट्रेड है, कोई बहुत अधिक, कोई बहुत बड़ा वाला ऐसा शॉर्ट नहीं है, बट यस इसमें वर्थ है. सो इसमें जो है मैं रिलायंस कैश में फिलहाल मैंने 2030 का स्टॉप लॉस रखा है. कल देखूंगा, स्टॉप लॉस हो सकता है मॉडिफाई भी करें. वाई? बिकॉज 2050 इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. यू हैव ऑल दी मूविंग एवरेजेस अलाइनिंग ओवर देयर. सो रिलायंस में मेरा टारगेट है 1900 के आसपास, 1910 1920. सो रिलायंस आज मेरा शॉर्ट है, एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स टुमारो. सो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए 2030 के स्टॉप लॉस से कैश मार्केट के लेवल पे रिलायंस जो है शॉर्ट है, एंड 1920 1900 के आसपास हम इसमें देख रहे हैं. नाउ इफ यू look at the heavyweight stocks in today's market, you will observe that most of these stocks have broken down. Okay, and that is what is concerning. So if I open my watch list for NSC, all these sectors and everything, look at the red. Everything was red. एंटायर स्क्रीन इज रेड. ये रेड, ये जो रेड है, इसको आप देख के समझ सकते हो कि किस तरीके का बाजार है. ओके, द ओनली सेक्टर which was in green, that to half, was metals and mining. So you have your Hindalco, Jindal, JSW, Vedanta, SAIL, हिंद जिंक, एनएमडीसी, और आज तो टाटा स्टील ने भी एग्जॉशन के साइंस दिए हैं मुझे. सो एवरीथिंग वाज रेड. जितना मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, सी ऑल दी स्टॉक्स आर हियर सेक्टोरली अरेंज्ड, एंड दिस हेल्प्स मी टू फील द मार्केट. ये मार्केट में किस तरीके का एक वाइब्रेशन है, किस तरीके का एक फील फैक्टर है. सो एवरी सेक्टर वाज रेड एक्सेप्ट मेटल्स एंड आईटी, राइट. सो अगर हम हैवी वेट्स की बात करें तो रिलायंस टूट चुका है. एचडीएफसी बैंक पे कल मैंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि सपोर्ट है बट कुछ तो गड़बड़ है इस बैंक में. something is not adding up, so please be careful. So again, HDFC Bank has broken. So HDFC Bank can again fall all the way towards 1365. So that is again a heavyweight counter. HDFC, ये भी आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है. लाइन चार्ट्स पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर होने वाला है. सो दीज आर नॉट लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग गुड. आईसीआईसीआई बैंक अगेन 571 पे, ये भी कमजोर हो चुका है. सो गलती से भी ये सब अगर ये सब जल्दी बाउंस नहीं किए तो दे आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ करेक्शन. आईसीआईसीआई बैंक जो है, इसका गैप है लगभग 535 के आसपास, तो ये वहां तक बड़े आराम से जा सकता है. सो दीज स्टॉक्स नीड टू जंप, नीड टू बाउंस बैक वेरी सून, क्योंकि अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो वो भी एक वीकनेस ही होगा. ओके, दैट टू विल बी अ वीकनेस. इंडसइंड बैंक देखिए 937 आ गया. लास्ट वीक मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने कहा था कि इस स्टॉक से अब निकल जाइए. ये स्टॉक जो है अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है, एंड एनी रैली दैट कम्स ट्राई टू सेल, ट्राई टू एग्जिट दिस स्टॉक. सो इंडसइंड बैंक बेरिश है 870, इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है. ओके, सो लेट मी टेक योर स्टॉक क्वेरीज. ओके, सो ज्यादा स्टॉक तो नहीं ले पाएंगे, बट ठीक है, थोड़े बहुत स्टॉक ले लेते हैं. सो टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स बेरिश हूं मैं. कल ट्रेनिंग में मैंने टाटा मोटर्स पे शॉर्ट ट्रेड दिया था कि 312 अगर क्रॉस नहीं करता है तो टाटा मोटर्स को हम शॉर्ट करेंगे. 312 के ऊपर गैप अप खुलता है तो बाय करेंगे. सो ट्रेनिंग में काफी कुछ डिस्कस हो जाता है, ट्रेड्स भी हो जाते हैं डिस्कस, और कोई ट्रेड हाथ लग गया तो आपका पूरा पैसा वसूल. सो टाटा मोटर्स बेरिश, राइट. सो 312 के नीचे हम बेरिश हैं टाटा मोटर्स में, एंड टारगेट होगा 284 का. बजाज फिनसर्व, बजाज देखो, बजाज फाइनेंस में जो आज सेल ऑफ हुआ है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉकडाउन अनाउंस्ड इन महाराष्ट्र. सो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, दीज आर स्टॉक्स वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं. सो बजाज फिनसर्व में मैसिव डिक्लाइन, एंड स्टिल जब तक ये 9800 क्रॉस नहीं करता है इट इज बेरिश. एंड डाउन साइड में देखो, मैं कोई डाउन साइड का कैप नहीं रखना चाहता, बिकॉज दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स दे कैन कोलैप्स टू एनी लेवल. इन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं. ओके, एंड अगेन स्ट्रक्चर वाइज सब धीरे धीरे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आ रहे हैं, राइट. सो चैनलाइज्ड करेक्शन है. If I can ready the chart, so it's a channelized correction and this should continue. Okay, so जब तक ये 9829 क्रॉस नहीं करता है, it is bearish and all levels are possible. Do not cap the levels. जब एक चढ़ा हुआ बाजार जब गिरने की तैयारी करता है
तो वो कहीं तक भी गिर सकता है। हीरो मोटो हीरो मोटो हीरो मोटोकॉप अगेन बेरिश है। कल भी ये हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक जो है बेरिश है, अगर कोई रैली आता है वो भी सोल्ड ऑफ हो जाएगा। सो सपोर्ट 200 डीएमए का टूट चुका है, बेरिश है, ऑल दीज स्टॉक्स आर बेरिश। सो 3000 के नीचे बेरिश है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, you have bought at 3550. Okay, सी फॉर द टाइम बिंग, सी ये स्टॉक कौन से टाइम फ्रेम के लिए बाई किया आपने, आई डोंट नो। इसका आखिरी सपोर्ट है 3300। फिलहाल ये स्टॉक बेरिश लग रहा है मुझे, ठीक है, बिकॉज द वे इट हैज रिएक्टेड फ्रॉम द 50 डे मूविंग एवरेज, ऐसा रिएक्शन इसने पिछले एक साल में कभी नहीं किया है। सी स्टॉक को एनालाइज करना सीखिए। ये जो पिंक लाइन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। लास्ट अप्रैल 17 अप्रैल 2020 से आज क्या तारीख है, 5 अप्रैल 2021, आज तक इसने इस मूविंग एवरेज को कभी छुआ भी नहीं था, कभी टेस्ट भी नहीं किया था। और इस बार इसकी इतनी हिम्मत है कि इसको ये ब्रेक भी करता है और धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। दैट मीन्स बेरिश बिहेवियर है एंड स्टॉक इज बेरिश। सो अभी इस वक्त इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं तो यही करता, एंड जब तक ये 3800 को क्रॉस नहीं करता, दिस स्टॉक इज बेरिश एंड पॉसिबली it can fall to any level. Okay, so whenever you have a stock which has rallied multiple times, you should be more ready for exit, क्योंकि आप खतरे में हैं। ओके, सो 3800 के नीचे डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है बहुत बेरिश है एंड फिलहाल इस पे मैं बुलिश व्यू नहीं दे सकता। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों, अगर एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इशू, बट कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल बुलिश है। क्यों बुलिश है, सी लुक एट दी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट ट्रेड वही होते हैं जो एक सेकंड में नजर के सामने आ जाते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, व्हाई आई सेड इंस्टेंटली कि ये बुलिश है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने की अच्छी कोशिश है। 1 2 3 4 5 पैटर्न इज कंप्लीटेड, 65 डे मूविंग एवरेज इज पोजिशनड ओवर हियर। सो ये जो स्टॉक है, जब तक ये 2788 यानी लगभग मैं कहूँ तो 2750, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, ये स्टॉक बुलिश है। एंड यू मे सी अ ब्रेकआउट एनी डे, इवन इफ इट डिप्स, आई एम अ बायर। तो सिंपल बात ये है कि जब तक ये 2750 वगैरह के नीचे नहीं जाता है, स्टॉक बुलिश है। एंड अगेन यू मे सी your previous highs of 3300, this can become a flat pattern, flat rectangle, ठीक है। 2750 के नीचे निकल जाएंगे, बट जब तक 2750 है, आई एम बुलिश इन दिस स्टॉक। एंड वन मोर थिंग इज कि जो करेक्शन है ये काफी हेल्दी करेक्शन लग रहा है। हाउ डू आइडेंटिफाई वेदर द करेक्शन इज हेल्दी और नॉट, यू लुक द कैंडल प्लेसमेंट्स। ये एक्सपीरियंस के बाद आता है, बट इफ यू नो व्हाट टू लुक फॉर, आप इसको गेज कर लेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग बहुत ही शानदार है एंड आई एम अ बायर इन दिस स्टॉक, तेजी है। सुवेन लाइफ साइंस, नेक्स्ट स्टॉक है सुवेन लाइफ साइंस। ओके, सो सुवेंद्र अधिकारी इज विनिंग, सो इट मींस दैट सुवेन लाइफ साइंस जो है तेजी का काउंटर है एंड 70 जो है आखिरी इसका स्टॉप लॉस है। ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल। 70 का स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट है एंड 95 तक ये स्टॉक जो है जा सकता है, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव टेकन सुवेन लाइफ साइंस, नेशनल एल्यूमिनियम, सो आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, लेट मी सी। यस यस यस, ओके, सो नैल्को में कुछ ज्यादा खास मैं बुलिश नहीं हूँ, बट क्योंकि मेटल स्टॉक्स वगैरह भाग रहे हैं तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 62 तक जा सकता है। ट्राई टू एग्जिट लाल पाथ लैब्स। यस, सो ये जो स्टॉक था, ये वही होता है कि ज्यादा लोगों को याद नहीं होता है, बट ये जो है हमने काफी पहले ये स्टॉक जब ये करेक्शन कर रहा था, उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई दिस स्टॉक इज अ इन्वेस्टर स्टॉक एंड व्हाई दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मूविंग एवरेज सपोर्ट से काफी अच्छा ये बुलिश, इसमें 3000 तक की रैली जो है बड़ी शानदार रैली है, ठीक है। दिस वाज अ वेरी वेरी ऑसम चार्ट।
सी, इसलिए मैं कहता हूँ मंथली चार्ट को देखना सीखो। लुक एट दिस, ये बिग कैंडल, ठीक है, लुक एट द रिकरिंग पैटर्न, आपको सेम सेम पैटर्न दिखाई देगा। ओके, लुक एट यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट। तो जो एक इन्वेस्टर स्टॉक होता है ना, उसकी मूवमेंट जो है वो काफी सिमिलर होती है। दे ऑलवेज मूव इन अ वेरी सिमिलर फैशन। सो दिस इज व्हाई आई हैड सेड कि ये जो लेवल है 2200 के आसपास बहुत ही शानदार है, एंड गो फॉर इट। ये आपको 50% रिटर्न तो ये देगा। बहुत ही अच्छा ये चार्ट था, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट चार्ट, एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट इट हैज completed almost 50% रैली। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से। सो लेट मी टेक जाइडस वेलनेस और डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, सो जाइडस वेलनेस देखिए 2011 पे है, अगेन स्पाइक वाला काउंटर है। एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ग्रुप में कि ये काउंटर किस तरीके से मूव करता है, तो बनी रहिए, नथिंग टू वरी। ये आपको 2300-2400 का लेवल दिखा देगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, अब 1850 अपना स्टॉप लॉस है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉप लॉस हिट होगा, मुझे लगता है टारगेट हिट होगा। ठीक है, अगला जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज में देखते हैं क्या सिचुएशन है। 4400 के ऊपर ये काफी अच्छे से, ओके, सो आई थिंक नाइस। ये अब ये स्टॉक ठीक है, अब ये स्टॉक ठीक है, इसका डैमेज रिपेयर हो चुका है। मंथली चार्ट्स पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 5 साल पुराना हाई था 4400 4300 वाला, इसको हमने बैक टेस्ट किया है और काफी अच्छे तरीके से जो है ऑन मंथली टाइम फ्रेम वी हैव मेड अ वेरी नाइस बुलिश पिन बार, एंड वी आर कंटिन्यूइंग। सो आई एम हैप्पी, ये मुझे अब अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। सो इसमें क्या करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। ठीक है, सो बेस्ट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 4365 कैश में, 4365 के आसपास यहाँ अगर मिले तो काफी अच्छा होगा। अब इसका फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, एंड आई बिलीव दिस स्टॉक इज राइट फॉर अगेन इवेंचुअली न्यू हाइस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो इवेंचुअली ये करेगा, एंड स्टॉप लॉस हम इस स्विंग बॉटम को रखेंगे। अब डिप्स पे बाय करना है, प्लीज नोट, इसको डिप्स पे ये करेंगे, फोमो नहीं होना है। वेरी नाइस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। थोड़ा सा और अगर ये कॉइलिंग करके ब्रेकआउट देता तो मुझे ज्यादा पसंद आता, बट ठीक है, सब कुछ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट ओवरऑल वेरी नाइस। ठीक है, सो डॉक्टर रेड्डीज में वेट करो, किसी दिन भी गिरावट है इसको लैप अप करेंगे। 4135 का एक इनिशियल स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा भी मूवमेंट ऊपर आ जाएगा तो स्टॉप लॉस को हम थोड़ा एडवांस कर देंगे। राइट, वीकली चार्ट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, शानदार है, बहुत अच्छा। ठीक है, सो आई थिंक ये हो चुका है। या ड्यूरिंग कोविड आल्सो फार्मा सेक्टर रैलीड, या सेम स्टोरीज यार, वही सब स्टोरीज रिपीट हो रही है, नथिंग न्यू। Probably this will be the last leg of pharma। और बायोकॉन हम पहले से बुलिश हैं, राइट, बायोकॉन वाला जो स्टॉक है। सो सीजी पावर में ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि स्टॉक हवे में है बेसिकली। सो प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे ख्याल से बेटर होगा। और 50 डे मूविंग एवरेज को याद रखो, वहां पे री एंट्री अच्छी होती है। बायोकॉन एक बार मैं लेना चाहूंगा बिकॉज बायोकॉन पे मैं बुलिश था और मैंने एडवांस में कहा है कि ये स्टॉक 440 जाएगा। कोई भी डिप आती है तो स्टॉक को बाय करेंगे। सो इट इज अगेन मेकिंग अ ट्राइंगल, कॉइलिंग है, कोई भी गिरावट आता है इसको उठा लेंगे। ठीक है, सो बायोकॉन में हम वापस से जा रहे हैं धीरे धीरे, 440, 470, 506, all these levels you can see on the monthly chart। if you can see my cursor, we are going over here। ठीक है, सो डिप पे बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जिनको कैश में प्ले करना है यू कैन बाय इन स्टैगर्ड मैनर एज वेल, थोड़ा थोड़ा करके भी बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक है सूर्या रोशनी, सूर्या रोशनी। एचयूएल तो भाई बता चुका हूँ, एचयूएल जैसा स्टॉक ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। नीचे 2100, 2200, 2000 पे उठाओ और 2800, 3200 का टारगेट जो मैं दे चुका हूँ पिछले एक साल से, वो टारगेट आएंगे, नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक मैं एक बार बता देता हूँ तो वो रेयरली हिट होगा, आई मीन रेयरली स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट्स हमेशा हिट होते हैं, बट वो स्टॉक पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। सूर्या रोशनी 50-50 स्टॉक है दोस्त। ओके, सो आई एम वेरी डाइसी, मतलब इसमें फ्रेश पैसा मत डालिए, एंड आई वुड सजेस्ट 330 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाएंगे क्योंकि कोलैप्स भी कर सकता है। सो 330 को मान के चलो, और कोई भी रैली होती है 420 के आसपास तो निकल जाएंगे इसमें से। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल,
131. सो अगेन बीएल का जो अपना 124 का लेवल था इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो वेरी नाइस. इनसाइड बार ब्रेकआउट है वीकली पे. सो शानदार है. ठीक है. अब देखो, फ्रेश अगर किसी को डालना है तो मत डालो क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है. बट हाँ, अगर आपने नीचे कहीं बाय किया हुआ है तो ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हो. एंड 140 145 वगैरह इसमें आ सकता है, निकल जाएंगे. लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है? सी, लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक का जो एक हेल्दी जो एक रैली था जो लास्ट ईयर हमने पिक किया था, राइट? लास्ट ईयर हम काफी बुलिश थे स्टॉक पे. सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन डी. वी हैव रिट्रेस्ड दी 61.8 एंड वी हैव अ वेरी नाइस बेरिश एनगल्फिंग ऑन दी मंथली. सो आई थिंक स्टॉक का एक इजी फेज खत्म हो चुका है. ये एक टाइप का राइजिंग वेज स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं वीकली पे, राइट? सो मेरे ख्याल से कोई भी अपमूव आता है 140-45 तो एक बार निकल जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स द अपडेट ऑन दिस स्टॉक बीईएल. ओके. सो आई थिंक चलिए लेट अस वाइंड अप. लेट अस वाइंड अप. एक स्टॉक ले लेता हूँ महिंद्रा महिंद्रा, क्योंकि आई थिंक इसमें कोई फंसा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा में. तो क्यों फंसे हो महिंद्रा एंड महिंद्रा में? इसमें जो है हमने बाद में बेरिश इसमें कहा तो था. यहाँ पे देखो चार्ट आएगा, यहाँ पे ड्राइंग भी होगी. आई रिमेम्बर क्लियरली. महिंद्रा, ये देखो, दिस इज द ड्राइंग. यस. सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या सिचुएशन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि ये स्टॉक से अब निकल जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जब ये 812 के आसपास था. ओके. सो क्यों निकल जाएंगे, क्यों ये मैंने कहा था? ध्यान से देखते हैं. डू यू सी अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न? यस. डू यू सी द चेंज इन बिहेवियर ओवर हियर? यस. तो पहले यहाँ पे हम इसमें तेजी में थे, फिर यहाँ से ये थोड़ा बाउंस अच्छा किया था. आई थिंक 50-60 पॉइंट्स का बाउंस था. देन इट स्टार्टेड टू गो साइडवेज, और फिर जब ये नीचे आया तो यहाँ मैंने कहा कि अब निकल जाओ. दिस इज नॉट गुड. सो यू नो, स्टॉक डेंजरस है एंड 695 तक ये स्टॉक फॉल कर सकता है. अगर थोड़ा भी अपमूव आता है 800 के आसपास तक निकल जाएगी. डू नॉट टेक चांस विद स्टॉक्स. लास्ट ईयर भी यही गलती लोगों ने की थी. बिफोर कोविड क्रैश, सेम मिस्टेक पीपल डिड. सी, आई थिंक या जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको याद होगा 840 के एसएल से शायद मैंने ये भी कहा था कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी करो. या सो जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको याद है. ओके. एसबीआई कार्ड. अभी एसबीआई कार्ड जो 10 दिन पहले एक बार एनालाइज किया था मैंने, तो अवॉइड था, टोटल अवॉइड था एसबीआई कार्ड, क्योंकि मंथली पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है. लास्ट टाइम भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल था, बट डिफरेंस एक था कि ओपनिंग मंथ का हाई पे ये बेस बनाना था. ठीक है. बट अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है. ओके. अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो इसमें फिलहाल आई वुड सजेस्ट कि बाहर ही बैठना सही है. ओके. क्योंकि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर अभी नहीं है. सो मेरी तरफ से तो कोई कोई एडवाइस नहीं है. स्टे आउट, दैट्स इट. एंड ओवरऑल स्टॉक अभी आई थिंक थोड़ा बेरिश है, थोड़ा बेरिश है. जब तक कि ये 1020 को क्रॉस नहीं करता, स्टॉक बेरिश है. एंड इट शुड कम somewhere near retest of 862. ठीक है. 862. सो आई थिंक टाटा स्टील ले लेते हैं. चलो, टाटा स्टील की डिमांड है एंड दिस विल बी द लास्ट स्टॉक गाइस. इसके बाद वाइंड अप करेंगे. सो टाटा स्टील में आज क्या हुआ है? टाटा स्टील में थोड़ा आज साइन ऑफ एग्जॉशन है, राइट? सो यू कैन सी दिस इज little sign of exhaustion. We have a small body, large candle placed at the top. Plus, we have this sliding parallel resistance. Okay, so this is the resistance of Tata Steel. So, short नहीं करना है, फ्यूचर्स में आप नहीं कर पाओगे. So, but I have taken the put. So, I have taken 800 put, right? Just a speculative bet है 13.5 rupees पे, and this will be held till April. So basically, from somewhere here, if the fall starts, very easily we can do 780. Very easily we can do 780. So this was the breakout. 780 तक हम आ सकते हैं, 760 भी आ सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है. So ये जो है risk defined है and it's just a speculative bet. If this works, fantastic हो जाएगा, 4-5 गुना ये हो जाएगा. ठीक है. और टाटा स्टील पे पोजिशनल क्या व्यू है कि बाहर निकल जाओ, बहुत रैलीज हो चुकी हैं. All the targets, markets, everything is done, and this is the long-term chart of Tata Steel from last 35 years, and every time we make a top somewhere here. So as you can see, in last 10 years, this has been the story somewhere in this channel.
we make a top, and same story repeats every time. Again पूरी तरीके से क्रैश every time. So I won't be surprised अगर ये वापस 300 पे आ जाए आने वाले 2 साल के साइकिल में. ठीक है, इफ यू सी सेम चीज होती है स्टॉक में, अनलेस देयर इज अ बिग समथिंग बिग चेंज. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल इसमें से निकल जाइए, इसके मोमेंटम में मत फंसिए, क्योंकि आप देख सकते हो क्या हुआ है पिछले 10 सालों में. ठीक है, सो एवरी टाइम आई हैव सीन पीपल गेटिंग स्टक एट टाटा स्टील एट द टॉप, दे कीप होल्डिंग इट और एकदम कैपिचुलेशन लेवल पे एग्जिट करते हैं, अगेन स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाता है. सेम स्टोरी. सो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो है जब मैं शेयर करता हूँ तो इसका फायदा उठाओ. ठीक है, सो दैट्स ऑल. आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इट्स मोर देन 1 hour, सो आई विल वाइंड अप. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दोज हु आर स्पैमिंग, आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो स्पैम मत कीजिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग. कल जो है आराम से ट्रेड कीजिए. टुमारो इज अ लिटिल ट्रिकी डे फॉर ट्रेडर्स. आज का दिन काफी सिंपल था, बट कल का दिन जो है थोड़ा सा डाइसी हो सकता है. एंड ऑल दोज गाइस जिनको ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है, यू कैन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल. टेक केयर, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो. जय माता दी.